اور آج کے لائیو سیشن میں دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں ترمذی صاحب۔ آج کے سیشن میں ہم پازیٹیو تھنکنگ پہ بات کرنا چاہیں گے۔ مظفر بھائی، جیسا کہ ہمیں اکثر سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بی پازیٹیو، تو بیسیکلی پازیٹیو تھنکنگ چیز کیا ہے؟ یار پازیٹیو تھنکنگ میں میرے نزدیک کہہ لیں کہ لائف کو گزارنے کے دو اپروچز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ آپ پازیٹیولی سوچیں، آپٹمسٹک طریقے سے گزاریں کہ ٹھیک ہے اچھا ہو رہا ہے سب کچھ کہ نہیں، اور دوسرا ہے پیسمسٹک اپروچ کہ یار نہیں، جو بھی ہو رہا ہے نا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ غلط ہی ہو رہا ہے۔ لیکن ریئلسٹکلی دیکھیں تو لائف کو گزارنے کی ایک ہی اپروچ ہے، پازیٹیو تھنکنگ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ الٹرنیٹ دیکھ لینا آپ کہ بھائی اگر پازیٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نیگیٹو ہے۔ نیگیٹو بندے دنیا میں کبھی بھی آگے نہیں نکلے۔ جتنے بھی آپ کامیاب ترین لوگوں کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں، نبیوں کی مثالیں دیکھ لیں، وہ ہر نبی پازیٹیو، ہر نبی امید کا ایک پیغام لے کے لوگوں کے پاس آتا تھا کہ یار نہیں، کہ امید رکھو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ آپ کے لیے آئے گی، اس کی رحمت سے جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن راستے بھی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے پازیٹیو تھنکنگ ایک وے آف لائف ہے، ایک کہہ لیں کہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے جس کو آپ کو زندگی میں لے کے چلیں گے نا تو پھر کامیابیاں اور راستے نکلتے جائیں گے۔ لیکن اگر پیسمسٹک رہیں گے، ٹھیک ہے، نیگیٹو رہیں گے تو پھر آپ اپنی آپشن بہت لمیٹڈ کر لیں گے۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپٹیمزم ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کو لیڈ کرتا ہے۔ بالکل ایسا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات جو کہ میں سوچ رہا تھا، جیسے کہ آپ نے بھی بات پڑھی ہوگی کہ جو پریشانی ہے وہ حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے، تو آپ کے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں، تو آپ اپنے خیالات کو کیسے پازیٹیو رکھ سکتے ہیں؟ پازیٹیو دیکھیں، خیالات کو پازیٹیو رکھنے کے لیے وجہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں پازیٹیو رہا جاتا، اتنی پریشانی ہوتی ہے، ایسے اتنی پریشانی کے اندر کیسے پازیٹیو رہا جائے، ٹھیک ہے۔ یا تو دو آپشنز ہیں، دو چوائسز ہیں آپ کے پاس کہ بھئی اگر آپ نیگیٹیوٹی کے اندر رہو گے، ٹھیک ہے، تو آپ یو ول ریمین اسی پرابلم کے اندر رہو گے اور اس سے نیچے آتے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پازیٹیو رہو گے، ٹھیک ہے، مائنڈ کو اپنے رکھو گے کہ یار نہیں، اس پریشانی میں بھی کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہے، کچھ نہ کچھ بہتری ہے، کچھ نہ کچھ اس میں میرے لیے لرننگ ایسی ہے جو کہ مجھے وہ سیکھنا ہے، تو پھر آپ اس سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرو گے۔ اب اس میں ایک کافی آپ نے مثال سنی ہوگی کہ دو مینڈکوں کی مثال اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ گرم پانی کے اندر دو مینڈکوں کو رکھ دو تو وہ اکثر یا تو بہت ہی گرم پانی ہوگا نا تو وہ فوراً باہر نکل جائے گا چھلانگ لگا کے، لیکن ادروائز وہ اپنے آپ کو اس ٹیمپریچر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کرتا ہے اور ٹل دا پوائنٹ وہ اتنا اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیتا ہے کہ بعد میں جب وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو باہر نکلنے کی انرجی بھی نہیں رہتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک میں آپ سے کوشچن ہے، جیسے کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ کی بکس پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم اپنے غصے کو ایسے مینیج کر سکتے ہیں، ہم نیگیٹو چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھ سکتے ہیں، پر اس کے باوجود جب ہم کسی ورس پوزیشن میں ہوں یا کنڈیشن میں ہوں تب ہم ان سب چیزوں کو ایک دم سے بھول جاتے ہیں، تب ہمیں اپنی کوئی بھی پازیٹیو تھنکنگ یاد نہیں رہتی۔ اس لمحے کے لیے آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ یار بات ساری اتنی سی ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو آپ کر رہے ہو نا، سب کچھ سیکھتے جا رہے ہو، ایک لائف ہوتی ہے آپ کے اسکول کے اندر اور ایک لائف ہوتی ہے آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی بندہ پہلی بار باہر نکلتے ساتھ ہی یا گراؤنڈ میں کوئی آتا ہے نا تو پہلے دن ہی 6 بالوں پہ 6 چھکے نہیں لگا، بالکل، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ آپ کبھی ایسی سچویشن آئے گی، اس وقت آپ تھوڑا سا یہ کہ آپ کو اپنے مائنڈ کو اویئر بنانا ہے۔ اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ میں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یار میرے اوپر یہ سچویشن آئی ہے اور میں نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس کا مائنڈ آپ کا الرٹ رہے گا کہ یار ہاں یہ سچویشن اور میں نے اس میں ایکٹ اس طرح سے نہیں کرنا، اب میں نے جو پڑھا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع اب آ گیا، تو پھر آپ جو ہے نا اس کو اپنے حساب سے اس میں ایکشن کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کی میں بات کر رہا ہوں، ایک انٹرسٹنگ کویسچن میرے مائنڈ میں آ گیا۔ جیسے کہ میرے فرینڈ ہیں وہ مجھ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار تفسیر میں جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہوں،
गलती से करूं या वैसे हो जाए या मैंने किसी को तंग किया, तो मेरे माइंड में फ़ौरन से एक चीज़ आती है कि अभी मुझे इसकी सज़ा मिलने वाली है, वो खुदा मुझे सज़ा दे देगा। अब मैंने इस केस को एक दूसरे फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उसकी जो सोच थी इससे बिल्कुल, वो बंदा कहता कि नहीं यार तफसीर ऐसा नहीं है, हमारा जो खुदा है वो हमें मोहलत देता है। तो मैं उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी लोगों को तंग कर देता हूँ, गुनाह हो जाता है, पर मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं होता। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जो पहले केस है, क्या उसमें कोई सच्चाई या कुछ ऐसे है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार केस टू केस हर बंदे के अपने तजुर्बात होते हैं, हर बंदा अपनी माइंड के हिसाब से चीज़ों को जो है ना वो असेस कर रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि आइंस्टाइन ने कहा था, ठीक है, वन ऑफ द ब्रिलियंट मोस्ट माइंड ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है, आखिर में आके यही कहा था कि यार जितना मेरे पास इल्म है ना, और उस सारे इल्म ने मुझे ये बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, यानी कि इतना कुछ उसको पता होने के बावजूद उस बंदा इस नतीजे पे पहुंचा था कि यार मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, हाँ, जो आपने बताया। तो इसलिए हर बंदा एक अपने सर्कल पे अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे जजमेंट कर रहा होता है। अल्लाह ताला की मसलहतों को समझना इतना आसान नहीं है, और आप ब्लैक एंड वाइट उसको नहीं कर सकते कि यार मेरे साथ क्योंकि ये हुआ तो ये रूल है ऐसे, ठीक है। हर बंदे के साथ जो सिचुएशन हो रही है वो उस पर्टिकुलर बंदे के लिए है, और सीखना को मिलता है, अक्सर दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, लेकिन आप कोई रूल नहीं बना सकते ऐसे, स्पेशली ऐसी चीज़ों में जहाँ पर अल्लाह ताला अपनी मसलहतें जो है ना उन पे करता है, तो उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार कोई ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अभी आपने बात की मसलहतों की और अल्लाह ताला की। अब आपने सुना होगा बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हम दुआ तो करते हैं पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग का, हमारे मुस्बत सोचने का, हमारी इबादत से कैसे ताल्लुक बनता है? ये दुआओं की कबूलियत का और पॉजिटिव थिंकिंग का, देखिए उम्मीद है तो तभी आप करते हो ना चीज़ें, ठीक है। दुआ भी तभी आप कर रहे हो कि अगर आपको उम्मीद है कि यार ये दुआ मेरी कबूल होगी, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही है, ठीक है। दुआ आप नेगेटिव होके मांग रहे हो तो यार फिर मांगने का फायदा क्या है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी आप लाइफ में, मैं तो कह रहा हूँ एक ही तरीका है, पॉजिटिव रहें, तभी आपको वो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी, वो चीज़ें, वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद देंगी। नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखना। लाइफ को अगर ख़राब करना है ना, ठीक है, अगर ये ख्वाहिश है किसी में कि यार मैं अपनी लाइफ की अंदर कुछ अच्छे होने से तंग आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ अपने आप को बर्बाद करना, तो नेगेटिविटी इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। नेगेटिविटी में पड़ जाओ तो आप तबाह कर लोगे अपने आप। अपनी बात की कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी। इसे थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि जो हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इस बात का पता लग सके कि हमारा जो अच्छा सोचना है वो हमारे लिए नई किरणें या नए मौके कैसे फराहम कर सकता है। ये पॉजिटिव देखें, दो तरह की ऑप्शंस हैं। अब एक मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, लेस ब्राउन अक्सर अपनी सेमिनार्स वगैरह में वो कोट किया करता था एक एग्जांपल के, दो शख्स थे, दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे और एक टाइम पे दोनों को फायर कर दिया गया, डाउन साइजिंग हुई, फायर कर दिया गया, और दोनों ने फिर कोशिश की, दोनों ने जाके सीरीज बनाई, डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे कोई जॉब्स नहीं मिल रही थी, दोनों को रिजेक्शंस का सामना हुआ। एक बंदा उसने कहा कि यार बस बहुत हो गया, मैं बड़ी जगहों पे जाके मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा ख्याल है कोई ऐसी जॉब नहीं है मेरे लिए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो घर पे आके बैठ गया। उसने अप्लाई करना छोड़ दिया, उसने कुछ देखना छोड़ दिया, घर में बैठ के मिजरेबल होता रहा, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, उससे करना, हर चीज़ पे लड़ाई झगड़े करना, वो उसका मामूल बन गया। दूसरा कोशिश में लगा रहा, उसने बहुत अप्लाई किया, कहीं से कोई वो नहीं हुआ, फिर एक कंपनी में वो जाके एज इंटर्न लग गया कि यार नहीं, मुझे पता है कि मेरे पास टैलेंट है और आपके पास जगह नहीं है या आप मुझे पे नहीं कर सकते तो पे ना करो, लेकिन मुझे अपने पास रख दो, बिकॉज आई नो कि मेरे टैलेंट को आप यूज़ कर सकते हो, और वो उस कंपनी के साथ जुड़ गया। अच्छी। अब उसकी वो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से उसको उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम तुम्हें पे करेंगे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं कोई काम करूँ, पॉजिटिवली कोई इम्पैक्ट करूँ, प्रोडक्टिव रहूँ। कुछ अर्से बाद उसी कंपनी में कोई टॉप मैनेजर था, वो किया, वो कहीं और चला गया, और फिर वो जॉब जो ओपनिंग हुई इस
इस बंदे को उन्होंने देखा कि यार ये बंदा कितना कमिटेड है, कितना डेडिकेटेड है, कितना मोटिवेटेड है, और दिस गाय जिसने हार नहीं मानी थी, इसको वो जॉब मिली। तो ऐसा इस चीज़ को मानने में कोई यानी कि जहन कबूल करने के लिए तैयार रहता है कि यार हाँ, जो बंदा कोशिश करता रहेगा वो उसको वो चीज़ मिल जाएगी, जो बंदा हार मान लेगा उसको वो नहीं मिलेगी। अभी अपने हार की बात की, तो आप में या कोई भी जितना भी पॉजिटिव थिंकर उससे कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में हम अपनी नाकामी को अपने लिए पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़े? नाकामी की हर खैर मेरी जो बातें हैं ना, वो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी अपने पर्सनल थिंकिंग पे आई। कोई ऐसा वो नहीं है बेंच मार्क के भी यार आप लोग समझ लो कि भाई यार ये ही जो है ना वो है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। लेकिन मैं कहता हूँ नाकामी कोई नहीं होती लाइफ में सबक मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, ठीक है। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप क्योंकि प्रिपेयर नहीं होते वो चीज़, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको यानी जब देखिए बचपन से लेके जब बंदा बिल्कुल ही लाचार होता है, कोई कुछ करने के काबिल नहीं होता, सीखता वो अपने आप को किसी काबिल बना देता है, ठीक है। फिर हम ये क्यों समझ लेते हैं कि यार हम जब जॉब करने आ गए या एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो हर से हमारा माइंड इतना ज़्यादा अवेयर हो गया है कि हर चीज़ ही हमें पता है। नहीं पता होगी, आपको लाइफ लेसन सिखाती रहती है, ठीक है। तो ये लेसन्स आपने सीखते रहना है और उन चीज़ों की वो एक्सपीरियंसेस की वजह से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये जो डिफ़िकल्टीज आती है ना, फेलियर्स आते हैं, ये बेसिकली क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता, उस काम को करने का नॉलेज नहीं होता, इसलिए आप उसमें फेल हुए हो। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना कि यार मैं फेल क्यों हुआ हूँ, तो आपको वजह पता चल जाएंगी, ठीक है। देयर आर ऑलवेज अंदर से हमें आवाज़ बस ये आती है यार कि शायद मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मसले जो है ना वो इस वजह से थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, या वो दूसरा बंदा उसने कोई चीटिंग कर ली, या हालात अचानक से चेंज हो गए, या मुझे सपोर्ट नहीं मिली, या मेरे पास टीम अच्छी नहीं थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमको अगर हम देखें ना तो हमारे पास ही वो नॉलेज उस लेवल का नहीं था जो उस चीज़ को कामयाब बनाना चाहे। अब नेगेटिव थिंकर होगा ना, वो देखेगा यार बारिश शुरू हो गई जबरदस्त। अच्छा मुजफ्फर भाई, अब तक जितनी भी आपने डिस्कशन की हमने बहुत हेल्दी रही, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे पहले नहीं कमेंट्स पता वगैरह जो होना यार, ये उसामा हमारा जो है ना कैमरा पकड़ के वो सारी कवरेज कर रहा है, कमेंट्स कोई है तो बताओ यार। इसके ऊपर नहीं है अभी, यहाँ से कमेंट्स आते हैं कि नहीं आते? नहीं आ रहे अभी, कोई नहीं आ रहे, पता चले वीडियो ही नहीं बन रही। खैर हमारे तजुर्बात ऐसे ही चलते रहेंगे और हमने नेगेटिवली नहीं सोचना और इस बारिश को भी एंजॉय करना है। हाँ अच्छा तमीज़ साहब, एक आखिरी बात बता दें, उसके बाद फिर हम बारिश का मजा लेंगे कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला है आज का अपने बच्चों के हवाले से, कि अभी जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने हमसे सीखना है, जो हम उन्हें सिखाएंगे वो ज़ुबान बोलेंगे। तो हम अपने बच्चों में कैसे डेवलप करें, या अपने अमल से हम उन्हें दिखाएं या उनके सामने इंडायरेक्टली हम कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जिससे कोई पॉजिटिव मैसेज। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बात जो है ना तुमने मेरे दिल की बात पूरी कर दी। बात ये है कि बच्चों को आप बताते रहोगे ना यार ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो उस चीज़ वही को करेगा। हाँ, Experience वो करके ज़्यादातर वही काम करेगा जिसे आप उसको Experience मना कर करके रहे हो। बच्चों को दिखाना होता है, ठीक है। आप अपने अमल से दिखाओगे ना कि यार अगर आप उन्हें कहो यार ये कूड़ा इधर नहीं फेंकना, लेकिन आपको जब मौका मिले आप रैपर्स उठा के इधर फेंक रहे हो, तो बच्चे वो सीखेंगे और उनको पता चल जाएगा यार कि माँ बाप भी यही कर रहे थे। तो दैट्स बताने से चीज़ें जो है ना, जब बड़े नहीं समझते यार, ठीक है, तो छोटे कहाँ से समझेंगे। हम अपने आसपास, हम अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में दोस्त यार होते हैं, सारे होते हैं, उनको हम 100 बातें बताते हैं, लेकिन नहीं, वो फिर वही गलतियाँ कर रहे हैं। तो बच्चों को हम क्यों ऐसा समझ लेते हैं यार, बच्चों को क्यों हमने बता दिया तो वो सीधे हो जाए, वो वही करेंगे। एग्जैक्टली जो देखेंगे ना वो उससे सीधे वही करेंगे। तो ये इसलिए हमें उनके सामने एक रोल मॉडल बनना होता है। और बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त वेदर। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि क्या बादल जो है ना इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं। ये चेक करें,
बहरहाल कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। हम मौसम को एंजॉय करते हैं, आप भी जहाँ पे हैं अपनी इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को एंजॉय करें और फिर कल दोबारा मुलाकात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। और आज के लाइव सेशन में दोबारा से हमारे साथ हैं तिरमिज़ी साहब। आज के सेशन में हम पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करना चाहेंगे। मुजफ्फर भाई, जैसा कि हमें अक्सर सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि बी पॉजिटिव। तो बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग चीज़ क्या है? यार पॉजिटिव थिंकिंग में मेरे नज़दीक कह लें कि लाइफ को गुजारने के दो अप्रोचेस हैं। ठीक है, एक है कि आप पॉजिटिवली सोचें, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से गुजारें कि ठीक है अच्छा हो रहा है सब कुछ के नहीं, और दूसरा है पेसिमिस्टिक अप्रोच कि यार नहीं, जो भी हो रहा है ना कुछ मेरे साथ गलत ही हो रहा है। लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो लाइफ को गुजारने की एक ही अप्रोच है, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट देख लेना आप कि भाई अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब है नेगेटिव है। नेगेटिव बंदे दुनिया में कभी भी आगे नहीं निकले। जितने भी आप कामयाब तरीन लोगों की मिसालें उठा के देख लें, नबियों की मिसालें देख लें, वो हर नबी पॉजिटिव, हर नबी उम्मीद का एक पैगाम लेके लोगों के पास आता था कि यार नहीं, कि उम्मीद रखो अल्लाह ताला की जो मदद है वो आपके लिए आएगी, उसकी रहमत से जो है ना वो नहीं होना चाहिए। परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन रास्ते भी निकलते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग एक वे ऑफ लाइफ है, कह लें कि आपका एटीट्यूड है जिसको आपको ज़िंदगी में लेके चलेंगे ना तो फिर कामयाबियाँ और रास्ते निकलते जाएंगे। लेकिन अगर पेसिमिस्टिक रहेंगे, ठीक है, नेगेटिव रहेंगे, तो फिर आप अपनी ऑप्शन बहुत लिमिटेड कर लेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो ऑप्टिमिज्म है वो पॉजिटिव थिंकिंग को लीड करता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो कि मैं आज सोच रहा था जैसे कि आपने भी बात पढ़ी होगी कि जो परेशानी है वो हालात से नहीं, ख्यालात से आती है। तो आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने ख्यालात को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? पॉजिटिव देखें, ख्यालात को पॉजिटिव रखने के लिए वजह चाहिए। ठीक है, अब अक्सर लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि यार नहीं पॉजिटिव रहा जाता, इतनी परेशानी होती है, ऐसे इतनी परेशानी के अंदर कैसे पॉजिटिव रहा जाए। ठीक है, या तो दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं आपके पास कि भाई अगर आप नेगेटिविटी के अंदर रहोगे, ठीक है, तो आप यू विल रिमेन उसी प्रॉब्लम के अंदर रहोगे और उससे नीचे आते जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, माइंड को अपने रखोगे कि यार नहीं, इस परेशानी में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ बेहतरी है, कुछ ना कुछ इसमें मेरे लिए लर्निंग ऐसी है जो कि मुझे वो सीखना है, तो फिर आप उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करोगे। अब इसमें एक काफ़ी आपने मिसाल सुनी होगी कि दो मेंढकों की मिसाल अक्सर कोट की जाती है कि गर्म पानी के अंदर दो मेंढकों को रख दो तो वो अक्सर या तो बहुत ही गर्म पानी होगा ना तो वो फ़ौरन बाहर निकल जाएगा छलांग लगा के, लेकिन अदरवाइज वो अपने आप को उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करना शुरू करता है और टिल द पॉइंट वो इतना अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेता है कि बाद में जब वो इतना गर्म हो जाता है जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता तो बाहर निकलने की एनर्जी भी नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि हम पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि चलें ठीक है, हम अपने गुस्से को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर रख सकते हैं, पर उसके बावजूद जब हम किसी वर्स्ट पोजीशन में हों या कंडीशन में हों तब हम इन सब चीज़ों को एकदम से भूल जाते हैं, तब हमें अपनी कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग याद नहीं रहती। उस लम्हे के लिए आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? यार बात सारी इतनी सी है कि एक चीज़ है कि जो आप कर रहे हो ना, सब कुछ सीखते जा रहे हो। एक लाइफ होती है आपकी स्कूल के अंदर और एक लाइफ होती है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है। ठीक है, और कोई भी बंदा पहली बार बाहर निकलते साथ ही या ग्राउंड में कोई आता है ना तो पहले दिन ही 6 बॉलों पे 6 छक्के नहीं लगा। बिल्कुल। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आप कभी ऐसी सिचुएशन आएगी उस वक्त आप थोड़ा सा ये कि आपको अपने माइंड को अवेयर बनाना है। अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप में अवेयरनेस ही नहीं है कि यार मेरे ऊपर ये सिचुएशन आई है और मैंने इसको कैसे टैकल करना है, तो फिर आप परेशान होंगे। लेकिन अगर आप उसका माइंड आपका अलर्ट रहेगा कि यार हाँ ये सिचुएशन
और मैंने इसमें एक्ट उस तरह से नहीं करना, अब मैंने जो पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका अब आ गया, दुरुस्त फरमाया। तो फिर आप जो है ना उसको अपने हिसाब से उसमें एक्शन करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपकी मैं बात कर रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया। जैसे कि मेरे फ्रेंड हैं, वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि यार तफसीर में जब भी कोई गलत काम करता हूँ, गलती से करूँ या वैसे हो जाए या मैंने किसी को तंग किया, तो मेरे माइंड में फ़ौरन से एक चीज़ आती है कि अभी मुझे इसकी सज़ा मिलने वाली है, वो खुदा मुझे सज़ा दे देगा। अब मैंने इस केस को एक दूसरे फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उसकी जो सोच थी इससे बिल्कुल, वो बंदा कहता कि नहीं यार तफसीर ऐसा नहीं है, हमारा जो खुदा है वो हमें मोहलत देता है, तो मैं उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी लोगों को तंग कर देता हूँ, गुनाह हो जाता है, पर मेरे साथ ऐसा भी केस नहीं होता। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जो पहले केस है, क्या उसमें कोई सच्चाई या कुछ ऐसे है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? केस टू केस हर बंदे के अपने तजुर्बात होते हैं, हर बंदा अपनी माइंड के हिसाब से चीज़ों को जो है ना वो असेस कर रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि आइंस्टाइन ने कहा था, ठीक है, वन ऑफ द ब्रिलियंट मोस्ट माइंड ऑफ ऑल टाइम्स, ठीक है, आखिर में आके यही कहा था कि यार जितना मेरे पास इल्म है ना, और उस सारे इल्म ने मुझे ये बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, यानी कि इतना कुछ उसको पता होने के बावजूद उस बंदा इस नतीजे पे पहुंचा था कि यार मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, हाँ, जो आपने बताया। तो इसलिए हर बंदा एक अपने सर्कल पे अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे जजमेंट कर रहा होता है। अल्लाह ताला की मसलहतों को समझना इतना आसान नहीं है, और आप ब्लैक एंड वाइट उसको नहीं कर सकते कि यार मेरे साथ क्योंकि ये हुआ तो ये रूल है ऐसे, ठीक है। हर बंदे के साथ जो सिचुएशन हो रही है वो उस पर्टिकुलर बंदे के लिए है, और सीखने को मिलता है, अक्सर दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, लेकिन आप कोई रूल नहीं बना सकते ऐसे, स्पेशली ऐसी चीज़ों में जहाँ पर अल्लाह ताला अपनी मसलहतें जो है ना वो पे करता है, तो उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार कोई ब्लैक एंड वाइट रूल। ठीक है, अभी आपने बात की मसलहतों की और अल्लाह ताला की। अब आपने सुना होगा बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हम दुआ तो करते हैं पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग का, हमारे मुस्बत सोचने का, हमारी इबादत से कैसे ताल्लुक बनता है? ये दुआओं की कबूलियत का और पॉजिटिव थिंकिंग का, देखिए उम्मीद है तो तभी आप करते हो ना चीज़ें, ठीक है। दुआ भी तभी आप कर रहे हो कि अगर आपको उम्मीद है कि यार ये दुआ मेरी कबूल होगी, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही है, ठीक है। दुआ आप नेगेटिव होके मांग रहे हो तो यार फिर मांगने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी आप लाइफ में, मैं तो कह रहा हूँ एक ही तरीका है, पॉजिटिव रहें, तभी आपको वो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी, वो चीज़ें, वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद देंगी। नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखना। लाइफ को अगर ख़राब करना है ना, ठीक है, अगर ये ख्वाहिश है किसी में कि यार मैं अपनी लाइफ से की अंदर कुछ अच्छे होने से तंग आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ अपने आप को बर्बाद करना, तो नेगेटिविटी इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। नेगेटिविटी में पड़ जाओ तो आप तबाह कर लोगे अपने आप। अपनी बात की कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी। इसे थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि जो हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इस बात का पता लग सके कि हमारा जो अच्छा सोचना है वो हमारे लिए नई किरणें या नए मौके कैसे फराहम कर सकता है। ये पॉजिटिव देखें, दो तरह की ऑप्शंस हैं। अब एक मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, लेस ब्राउन अक्सर अपनी सेमिनार्स वगैरह में वो कोट किया करता था एक एग्जांपल के, दो शख्स थे, दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे और एक टाइम पे दोनों को फायर कर दिया गया, डाउन साइजिंग हुई, फायर कर दिया गया, और दोनों ने फिर कोशिश की, दोनों ने जाके सीरीज बनाई, डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे कोई जॉब्स नहीं मिल रही थी, दोनों को रिजेक्शंस का सामना हुआ। एक बंदा उसने कहा कि यार बस बहुत हो गया, मैं बड़ी जगहों में जाके मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा ख्याल है कोई ऐसी जॉब नहीं है मेरे लिए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो घर पे आके बैठ गया। उसने अप्लाई करना छोड़ दिया, उसने कुछ देखना छोड़ दिया, घर में बैठ के मिजरेबल होता रहा, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, उसे करना, हर चीज़ पे लड़ाई झगड़े करना, वो उसका मामूल बन गया। दूसरा कोशिश में लगा रहा, उसने बहुत अप्लाई किया, कहीं से कोई वो नहीं हुआ, फिर एक कंपनी में वो जाके एज एन इंटर्न लग गया कि यार नहीं, मुझे पता है कि मेरे पास टैलेंट है और आपके पास जगह नहीं है या आप मुझे पे नहीं कर सकते तो पे ना करो, लेकिन मुझे अपने पास रख दो, बिकॉज आई नो कि मेरे टैलेंट को आप यूज़ कर सकते हो, और वो उस कंपनी के साथ जुड़ गया। अच्छे। अब उसकी वो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से उसको उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम तुम्हें पे करेंगे,
उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं कोई काम करूँ, पॉजिटिवली कोई इम्पैक्ट करूँ, प्रोडक्टिव रहूँ। कुछ अर्से बाद उसी कंपनी में कोई टॉप मैनेजर था, वो किया, वो कहीं और चला गया, और फिर वो जॉब जो ओपनिंग हुई, इस बंदे को उन्होंने देखा कि यार ये बंदा कितना कमिटेड है, कितना डेडिकेटेड है, कितना मोटिवेटेड है, और दिस गाय जिसने हार नहीं मानी थी, इसको वो जॉब मिली। तो ऐसा इस चीज़ को मानने में कोई यानी कि जहन कबूल करने के लिए तैयार रहता है कि यार हाँ, जो बंदा कोशिश करता रहेगा वो उसको वो चीज़ मिल जाएगी, जो बंदा हार मान लेगा उसको वो नहीं मिलेगी। अभी अपने हार की बात की, तो आप में या कोई भी जितना भी पॉजिटिव थिंकर उससे कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में हम अपनी नाकामी को अपने लिए पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़े? नाकामी की खैर मेरी जो बातें हैं ना, वो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी अपने पर्सनल थिंकिंग पे आई। कोई ऐसा वो नहीं है बेंच मार्क के भी यार आप लोग समझ लो कि भाई यार ये ही जो है ना वो है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। लेकिन मैं कहता हूँ नाकामी कोई नहीं होती लाइफ में सबक मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, ठीक है। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं होते उन चीज़ों से, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको यानी जब देखिए बचपन से लेके जब बंदा बिल्कुल ही लाचार होता है, कोई कुछ करने के काबिल नहीं होता, सीखता वो अपने आप को किसी काबिल बना देता है, ठीक है। फिर हम ये क्यों समझ लेते हैं कि यार हम जब जॉब करने आ गए या एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो हर से अपना हमारा माइंड इतना ज़्यादा अवेयर हो गया है कि हर चीज़ ही हमें पता है। नहीं पता होती, आपको लाइफ लेसन सिखाती रहती है, ठीक है। तो ये लेसन्स आपने सीखते रहना है और उन चीज़ों की वो एक्सपीरियंसेस की वजह से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये जो डिफ़िकल्टीज आती है ना, फेलियर्स आते हैं, ये बेसिकली क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता, उस काम को करने का नॉलेज नहीं होता, इसलिए आप उसमें फेल हुए हो। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना कि यार मैं फेल क्यों हुआ हूँ, तो आपको वजह पता चल जाएंगी, ठीक है। देयर आर ऑलवेज अंदर से हमें आवाज़ बस ये आती है यार कि शायद मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मसले जो है ना वो इस वजह से थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, या वो दूसरा बंदा उसने कोई चीटिंग कर ली, या हालात अचानक से चेंज हो गए, या मुझे सपोर्ट नहीं मिली, या मेरे पास टीम अच्छी नहीं थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमको अगर हम देखें ना तो हमारे पास ही वो नॉलेज उस लेवल का नहीं था जो उस चीज़ को कामयाब बनाना चाहे। अब नेगेटिव थिंकर होगा ना, वो देखेगा यार बारिश शुरू हो गई जबरदस्त। अच्छा मुजफ्फर भाई, अब तक जितनी भी आपसे डिस्कशन की हमने बहुत हेल्दी रही, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे पहले नहीं कमेंट्स पता वगैरह जो हो ना यार, ये उसामा हमारा जो है ना कैमरा पकड़ के वो ये सारी कवरेज कर रहा है, कमेंट्स कोई है तो बताओ यार। इसके ऊपर नहीं है अभी। यहाँ से कमेंट्स आते हैं कि नहीं आते? नहीं आ रहे अभी। कोई नहीं आ रहे, पता चले वीडियो ही नहीं बन रही। खैर हमारे तजुर्बात ऐसे ही चलते रहेंगे और हमने नेगेटिवली नहीं सोचना और इस बारिश को भी एंजॉय करना है। हाँ अच्छा तमीज़ साहब, एक आखिरी बात बता दें, उसके बाद फिर हम बारिश का मजा लेंगे कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला है आज का अपने बच्चों के हवाले से, कि अभी जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने हमसे सीखना है, जो हम उन्हें सिखाएंगे वो ज़ुबान बोलेंगे। तो हम अपने बच्चों में कैसे डेवलप करें, या अपने अमल से हम उन्हें दिखाएं या उनके सामने इंडायरेक्टली हम कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जिससे कोई पॉजिटिव मैसेज। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बात जो है ना तुमने मेरे दिल की बात पूरी कर दी। बात ये है कि बच्चों को आप बताते रहोगे ना यार ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो उस चीज़ वही को करेगा। हाँ, Experience वो करके ज़्यादातर वही काम करेगा जिसे आप उसको Experience मना कर करके रहे हो। बच्चों को दिखाना होता है, ठीक है। आप अपने अमल से दिखाओगे ना कि यार अगर आप उन्हें कहो यार ये कूड़ा इधर नहीं फेंकना, लेकिन आपको जब मौका मिले आप रैपर्स उठा के इधर फेंक रहे हो, तो बच्चे वो सीखेंगे और उनको पता चल जाएगा यार कि माँ बाप भी यही कर रहे थे। तो दैट्स बताने से चीज़ें जो है ना, जब बड़े नहीं समझते यार, ठीक है, तो छोटे कहाँ से समझेंगे। हम अपने आसपास, हम अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में दोस्त यार होते हैं, सारे होते हैं, उनको हम 100 बातें बताते हैं, लेकिन नहीं, वो फिर वही गलतियाँ कर रहे हैं। तो बच्चों को हम क्यों ऐसा समझ लेते हैं यार, बच्चों को क्यों हमने बता दिया तो वो सीधे हो जाएंगे, वो वही करेंगे। एग्जैक्टली जो देखेंगे ना उससे वो सीखेंगे। वही करेंगे। तो ये इसलिए हमें उनके सामने एक रोल मॉडल बनना होता है। और बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त वेदर,
एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि क्या बादल जो है ना इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं। ये चेक करें। बहरहाल कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। हम मौसम को एंजॉय करते हैं, आप भी जहाँ पे हैं अपनी इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, और फिर कल दोबारा मुलाकात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।